A very good afternoon. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh, and we are tracking the latest developments regarding monsoon in India. Now, monsoon fury is continuing to wreak havoc across India, with rain-related deaths rising in several states. From Maharashtra and Gujarat to Himachal Pradesh, Kerala and the Delhi NCR region, heavy rainfall has triggered flooding, landslides, building collapses, tree falls, and drowning incidents as well. Rescue teams remain deployed in the worst hit areas as thousands have been evacuated to safer locations. The India Meteorological Department has warned of more heavy to very heavy rain in several regions, raising fears of fresh flooding and further loss of life. Authorities have urged people to avoid flood-prone areas and follow official advisories as the monsoon continues its deadly sweep across the country. In Delhi's Samaypur Badli, tragedy actually struck when 7-year-old Rehan Ansari drowned in a rainwater-filled vacant plot near his home. The child had stepped out with his younger brother to attend nature's call when he ventured deeper into the flooded ground. When the family realized that he was missing, a desperate search began, ending 2 hours later with his body being recovered from the waterlogged plot. Now, angry locals allege that this tragedy was preventable, blaming years of ignored complaints over poor drainage in the area. Let's also shift our focus to Ghaziabad, which witnessed 2 heartbreaking tragedies as monsoon fury exposed civic negligence. 3-year-old Pallavi drowned after slipping into rainwater accumulated right outside her own home in Vijayanagar. In a separate horrifying incident, a security guard named Bablu was electrocuted after coming into contact with a live wire submerged in floodwaters. Now, CCTV visuals captured the horrifying moment as bystanders rushed to save him in vain. Locals blamed blocked sewers and exposed electrical hazards, demanding accountability from civic authorities before the rains claimed more lives. In Kerala's Wayanad district, at least 6 workers were killed after a landslide at a work site. With the IMD warning of more heavy rainfall, emergency teams remain on high alert as the monsoon continues to disrupt life across the country. Let me go across to my colleague Bhavna Sisodia, who joins us live from Delhi, and she will take us through these incidents that have been reported from Samaypur Badli, from Ghazipur, and these are unfortunate incidents. भावना, जब हम ये डेथ्स के बारे में बात करते हैं तो सिविक एपैथी, सिविक नेग्लिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, जो हमेशा हम हर साल यही क्वेश्चन पूछते हैं कि दिल्ली प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है. वी हैव लॉस्ट 2 यंग चिल्ड्रन. एक समयपुर बादली में एक 7 साल का रेहान, वी हैव लॉस्ट हिज लाइफ, एंड वी हैव लॉस्ट अ 3-year-old गर्ल एज वेल इन गाजीपुर. आप इस इंसिडेंट्स के पहले बारे में हमें बताएं और फिर अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं, क्या वो एक्शन लेंगी, क्योंकि लोकल्स तो सिविक अथॉरिटीज़ को ही ब्लेम कर रही है कि कंप्लेंट्स डाले गए फिर भी ग्राउंड पे कुछ काम नहीं किया गया. जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पीछे 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जो है दिल्ली में तमाम अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। लगभग 169 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए जहां पर जल भराव की स्थिति देखी गई, और वहीं जल भराव की स्थिति के कारण वाटर लॉगिंग के कारण दुखद घटनाएं भी सामने आई, जहां दिल्ली के समयपुर बादली के अंतर्गत आने वाले संजय कॉलोनी में एक 7 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। तो वहीं गाजियाबाद में एक पल्लवी नाम की बच्ची जो कि महज 3 साल की थी, उसकी डूबने से मौत हो गई है। वहीं एक घटना सामने आई है जहां सिक्योरिटी गार्ड पानी में अंदर फंस गया था, उसकी करंट लगने से जो है मौत हो गई। देखिए, एक के बाद एक मौतें जो है वो सामने आती जा रही हैं। अगर दिल्ली नगर निगम की बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम ने मानसून बारिश आने से पहले ये दावे किए थे कि नालों की सफाई कर दी गई है, डिसिल्टिंग कर दी गई है, जिसके कारण
मानसून के दौरान जो है जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि महज 3 दिन की बारिश ने जो है दिल्ली एनसीआर का जीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, यानी कि जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। अगर इन घटनाओं की बात की जाए तो जहां समयपुर बादली में 7 साल के रिहान की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि सुबह के समय रिहान अपने भाई के साथ जो है शौचालय के लिए जा रहा था, वही पानी में पैर फिसलने के कारण बच्चा डूब गया और लगभग 2 घंटे के बाद जो है वाटर लॉगिंग में बच्चे का शव मिला। और सेम इसी तरीके की घटना जो है गाजियाबाद से सामने आई, जब 3 साल की पल्लवी भी वाटर लॉगिंग का शिकार हो गई। देखिए, एक के बाद एक घटनाएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन अब देखना यही होगा जहां मानसून महज 3 दिन की बारिश में इस तरीके की स्थिति सामने आई है, जब मानसून अपने पीक पर होगा तब दिल्ली में किस तरीके की स्थिति निकलकर सामने आती है, किस तरीके के हालात निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इन सभी घटनाओं के पीछे जो लोग हैं वो साफ तौर पे प्रशासन और सरकार दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि मानसून हर साल आता है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एमसीडी जो है वाटर लॉगिंग से राहत दिलाने को लेकर जो है विफल होती हुई नजर आती है। वहीं 3 दिन की बारिश जो है इस तरीके की स्थिति देखने को मिली। अब देखना यही होगा कि जब मानसून अपने चरम पर होगा तो दिल्ली की क्या स्थिति होगी। जी भावना, आप हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट लेट मी ऑल्सो गेट इन